uh, continue from this electronic configuration, atomic number, element, complete electronic configuration, complete electronic configuration. Last is valence electronic configuration. Okay. Atomic number 19, element is potassium. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. काउंट करो इलेक्ट्रॉन यहां तक हो गए होंगे 18 and after 3p not 3d 4s1. 4s. Okay, 4s 4s1. Okay, 4s1 and up to 3p6 there are 18 electron and you can write it as argon 18. Okay, so valence electronic configuration is argon 4s. 18 4s1. Okay, argon 18 4s1 और ड्रॉ करना है. It contains only one electron, single electron. ठीक है. Same for 20. Atomic number 20 is of calcium. Its electronic configuration यहाँ तक same लिख लेना. Last is 4s2. So argon 18 4s2. Two electrons 1 2. ठीक है. Next is atomic number 21. यहाँ से difference है 21. Atomic number 21 is scandium. SC. Full name is Scandium. scandium. नाम लिखते हैं ना scandium. And complete electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ठीक है. After 3p just write 3d. सिर्फ लिखना है, फिल नहीं करना. ठीक है. जस्ट फॉर सीक्वेंस. दोबारा देख लो. यहां तक फर्स्ट शेल कंप्लीट होगी, सेकंड शेल. सो फॉर सिमेट्री यू विल राइट 3d, बट एज यू नो फिल कौन सा करना है पहले? 4s. पहले यहां तक एग्री करो. इज इट ओके? जस्ट लिखना है. ऑर्डर ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट देन ऑर्डर ऑफ फिलिंग द ऑर्बिटल्स. 20 हो गए, काउंट करके देख लो. Rest is 1, so you write 3d 1. Filled after 4s, but it is to be written before 4s. Logic क्या है? That I'll explain after we'll finish with all the atomic numbers. Valence electronic configuration. Can anyone guess?
Valence electronic configuration will be Sir, argon 4s. 18, no, 3D 1 4s, okay, 3D 1 4s 2. You can draw it and थोड़ा राइट साइड पे लिख से ड्रॉ करो. आर्गन 18 3D1 4s2. एक बार, दो बार, 10 बार देख लो, समझ लो. 3D is to be written before 4s. ऑपोजिट लिखोगे रॉन्ग हो जाएगा. ऑर्बिटल्स फिल करो. It has only one valence electron in D1, S says 2. Okay, one unpaired electron. This is for atomic number 21. Try this for atomic number 22 and atomic number 23. 24 you'll not do. Exception है. क्या मैं करवाऊंगा, आपने नहीं करना. 22 करो. 22 atomic number is of titanium. '23 atomic number is of vanadium. Okay, write down the electronic configuration for atomic number 22 and 23. Who's missing? Argun, good morning. मैंने देखे नहीं तो कब आया. Good morning, sir. Good morning. Missing कौन है? इसका अश्विन, सिमरन. Okay, ठीक. Done. Yes, sir. Okay. So what is the electronic configuration of titanium? Last बता दो बस. Last two. Sir, 3d2 4s2. 3D2 4s2. 4s2. ठीक है. And this one? Sir, 3d3 4s2. 4s2. ठीक है. और वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली सेम ही हो जाएगी. Yes, आर्गन sir. 18 3D2 4s2. This is argon 18 3D3 4s2. ठीक है. छोड़ दो ऐसे. 24 अभी नहीं कर रहे. 25 atomic number 25 is manganese. Manganese. ठीक है. Its complete electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d फिल नहीं करना. 4s2 यहां तक हो गए थे बेटे 20.
3D5, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर 3D किसी ने पहले फिल नहीं करना, फिल करोगे गलत होएगा, फिल बाद में करना है, लिखना पहले है। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस विल बी आर्गन, 3D5 4s2, ड्रॉ करके देख लो। It has 5 valence electrons in D cell. 1, 2, 3, 4, 5. So it has 5 unpaired electron. लिख दूं यहाँ पे 5 unpaired electrons. In fact ऊपर वाला में भी mention कर लेना. On similar pattern, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो. On similar pattern, सर yes. सर ये जो आपने 3D लिखा है तो इसको सर हाईलाइट भी करना पड़ेगा अलग से? नहीं नहीं नहीं, हाईलाइट नहीं करना, वो आपकी करना है कर भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन एग्जाम, ठीक है, जो नॉर्मल पेपर पेंसिल एग्जाम होंगे उसमें Okay, देख लो आपने यूज क्या करना है। यू विल यूज ओनली ब्लू पेन, ठीक है, और पेंसिल, पेंसिल ब्लैक में है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। रेड पेन इज फॉर चेकर, ओके सर। ब्लैक जो रीचेक करते हैं, एंड ग्रीन फॉर जो हेड एग्जामिनर है, ठीक है। सो आप सिर्फ ब्लू पेन यूज करोगे। हाईलाइट, यस यू कैन हाईलाइट just like this if you want, ठीक है, but I suggest to highlight some important points। कोई भी क्वेश्चन करोगे ना बाकियों में, 27 is cobalt, (28) is nickel, (29) is copper, and again copper is exception, नहीं करना, skip करना है। You'll go for atomic number 30, is zinc, ठीक है। मैंगनीज देख लो, ट्राई करो, जो एक्सेप्शंस हैं लीव देम, बाकी लिख के देखो। अनु, आज तेरी क्लास नहीं है कोई? यस सर। आज स्कूल की क्लास नहीं थी 9 o'clock? नहीं सर, आज 10 बजे से है। अच्छा अच्छा, तेरा एक मार्क्स क्यों कटागा? सर वो उसमें कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी में गलती होगी। हेलो, गुड मॉर्निंग सिमरन, टाइम देखा है? इट्स 9 o'clock, 8:30 तो तेरी क्लास थी। ओके सर लिखा हुआ तू, उठ जा, ठीक है। हाँ बस ठीक है, फिर ऑन कर कंप्यूटर। ओके।
इश्ता तेरे भी 2 मार्क्स कटे हैं, चेक कर ली थी जो भी गलतियां थी। यस सर। वो तो एक क्या बोलते हैं उसे, कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट था वो, कि टेस्ट थोड़ी था जो अभी देखा हो, क्वाइट इजी। बट ऐसा भी नहीं है वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, वो आएगा ही आएगा आपको कंफर्म पेपर में। सेकंड जो 100% क्वेश्चन आना ही आना है उसमें से, वो रूल्स थे। वो एक रूल आए बच्चे, 3 आए, 4 आए, आई एम नॉट श्योर भी कितने आएंगे, डिपेंड, अलग अलग टीचर अलग अलग डालते हैं, लेकिन आएंगे वो कंफर्म एज इट इज आएंगे। स्टेट द फॉलोइंग। हरगुन डन? हरगुन तेरे माइक को क्या हुआ है? हाँ जी सर। हेलो, अच्छा हुआ ऑडिबल या नहीं? यस सर। सिमरन तू कैसे ज्वाइन हुई? सर मैंने कर दिया था। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके चलो डन हो गए? यस सर। ओके चलो, जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा दो वन बाय वन, स्टार्टिंग विद अनु। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, ओनली वैलेंस आर्गन 18, 3d6 4s2 3d6 4s2, and how many unpaired electrons? काउंट करें? सर 3। नो, so 4 4 4 4 unpaired electron.
सर 4। 4 होंगे बच्चे, ड्रॉ करके देख लो। देयर विल बी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी है ना, डी 1 2 3 4 and 5. S has 2 electrons, D has 1 2 3 4 5 6, 4 unpaired electron. अर्जुन ठीक है? यस सर, वो देखा मैंने करके। 4 unpaired electron, ठीक है। And what is the electronic configuration of cobalt? Next, Argun. Sir, argon 18 3d7 4s2. 3d7 4s2, good, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिख दूं 3d8 4s2। लास्ट इज तनिष्का। Zinc 3d10 4s2 3d10 4s2। तो सिमरन ने अभी ज्वाइन किया है। सिमरन फॉर यू मैं बता देता हूँ, यहाँ पे स्टार लिखा है ना, एक्सेप्शन लिखी है। दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यू विल नॉट राइट, अभी नहीं लिखनी थी, ठीक है। दो करी हैं, हाँ जी, दो करी हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शंस हैं, अभी एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर 24, एलिमेंट इज क्रोमियम। क्रोमियम, ठीक है। its electronic configuration is एक्सक्यूज मी one, सर, yes, सर मेरी दूसरी क्लास है। तेरी अच्छा इशिता, यस सर। ओके, तेरी ट्यूशन की है स्कूल की है? सर ट्यूशन की है। ओके 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 ओके, चल ठीक है ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसकी 1s2 2s2 3s2 3p6 3d, छोड़ दो 4s2 3d4, यही होनी थी ना। चेक कर लो, इलेक्ट्रॉनिक नंबर मैच कर लो, 23 से मैच कर लो। इज यस इट? सही। यही होनी चाहिए थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सपेक्टेड। स्क्रीन में शो हो रही है। Expected electronic configuration, but actually this electronic configuration is wrong. आप ऐसे करोगे, अदरवाइज अलग से कर। यस, आवाज आपकी थोड़ी। आवाज आ तुम्हारी कट कट कर रही है। ओके, मैं देख रहा हूँ।
अब चेक करो। यस सर अब आ रही है। ठीक, ओके। हाँ चलो, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है क्रोमियम की, ठीक है। अगर तो वहीं पे बचे स्पेस है तो वहीं पे लिख दो, अदरवाइज फ्रेश पेज पे स्टार्ट करना है। बट एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1. This is actual electronic configuration. रीजन अलग से करेंगे इसका. This is actual electronic configuration. So obviously valence electronic configuration भी क्या हो जाएगी इसकी, argon 18 3d5 4s1. 1 2 3 4 and 5 1. इलेक्ट्रॉन्स फिल करो 1 2 3 4 5 6. So it has 6 unpaired electrons. ठीक है, 6 unpaired electrons. ओके, डिफरेंस यहाँ पे है 3d5. Expected was 3d4, but it is 3d5. Reason is stability. But what I explained this in a separate question. इसके बाद just एक 29 कर लें फिर करते हैं. Noted? यस सर। On similar manner, write down the electronic configuration of copper. जो आपको लग रहा है expected होएगी जो, that is be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9. This is expected. Expected electronic configuration, but again wrong है. Actual electronic configuration of copper is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10. वहीं पे फिर डिफरेंस है 3d10 4s1. This is correct electronic configuration or actual electronic configuration of copper. So actual electronic configuration आई क्या? It's argon 18 3d10 4s1. ड्रॉ करो. थ्री डी 10. फोर एस वन. दिस ओके. अब करते हैं इसके रीजंस, क्यों हुई, वाई. पहले नोट कर लो 1 to 30. कोई डाउट है प्लीज पूछ लो.
अनु, अर्जुन, नो सर। अश्विन, नो सर। नो किसी और को भी अगर है तो प्लीज पूछ लो। नोटेड। यस सर। अब ये ट्रेंड क्यों चेंज हुआ, ये क्या हुआ, 3D9 में क्या गड़बड़ थी या 3D4 में क्या गड़बड़ थी, इसके बेसिस पे राइट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, एंड पहले ही लिख देता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज why chromium atomic number 24 has exceptional electronic configuration. Why chromium has exceptional electronic configuration? सॉल्यूशन देखो, पहले दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मैं लिख रहा हूं बच्चे। लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम जो आपने अभी करी है, राइट हैंड साइड एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, electronic configuration of chromium. Expected electronic configuration of chromium is, you can write only valence electronic configuration, 4s2 3d4, but actually it is 3d5 4s1. यही है ना? यस सर। कंप्लीट लिखना है, यू कैन राइट आर्गन 18, ठीक है, बट नहीं भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, आर्गन 18, ठीक है। रीजन क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग टू रीजन, दिस इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग two reasons. Following two reasons. Reason number 1, stability. ठीक है, stability. स्टेबिलिटी कैसे है? पहले एक लाइन लिखना है, सिमिट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। Symmetry leads to stability. If something is more symmetrical, it will be more stable. मैं रिपीट कर रहा हूं, इस लाइन को ये लर्न करना है। Symmetry leads to stability. If something is more symmetrical, naturally it will be more stable. ठीक है, बट सिमेट्री कैसे चेक करें? सिमेट्री देखो, completely filled and half filled and half filled subshells are more symmetrical and hence more stable
and hence more stable than partially filled subshells. Then partially filled subshells. इन दो लाइंस को elaborate कर रहा हूं. We have 3D4 argon 18 3D4 4s2 and argon 18 3D5 4s1 से ड्रॉ करो बच्चे दोनों को. First this one 3D4 4s1 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 and in this case fill electrons fill करके देखें 1 2 3 4 okay स्क्रीन स्टॉप हुई है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 मिनट. Is it okay? आगे Yes, sir. Yes, sir. 3D4 4s2 just look at the arrangements and let me know which one is more symmetrical. Sir, second actual. Actual, ठीक है. A B part. Okay, so mention the points. वन नोट ही आज प्रॉब्लम कर रही है. Three, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Okay. This is completely half filled. Completely half filled. More symmetrical. And hence more stable, more symmetrical,
and this one is more stable. दूसरा लिखो दूसरी साइड, partially filled, not symmetrical, less stable. So therefore this electronic configuration is preferred. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Screen delay तो नहीं हो रही? No, sir. चलो, this is first reason. Second reason लिखो, exchange energy. चलो, exchange energy के पहले भी 2 पॉइंट्स अच्छी तरह याद करो बेटे. ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, completely filled, या तो पूरी शेल fully filled हो और completely half filled हो. These are more stable than partially filled. Means अगर इलेक्ट्रॉन आ सकते हो 5 इलेक्ट्रॉन हो 4 3, उनसे हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है. ठीक है. Completely filled electronic configurations are always more stable than partially filled electronic configurations. सर वो स्क्रीन नहीं दिख रही. मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें ना बग है. ठीक है. ओके, यहीं पे आके, पर आपने पॉइंट्स लिख लिए थे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second लिखो. Second reason is exchange energy. Exchange energy. मैं इससे इनफैक्ट आई थिंक वन नोटबुक 1 2 3 नो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही. मैं इसे क्लोज ही कर रहा हूँ. डिफरेंट स्क्रीन ही शेयर करते हैं. Has whiteboard. शेयर ज्वाइन ऑडियो हो गया. शेयर स्क्रीन. शेयर स्क्रीन ड्रॉपबॉक्स. Advanced. Basic. एक्सचेंज एनर्जी चीज क्या है स्टूडेंट? पहले इन दोनों को दोबारा ड्रॉ करते हैं, ए और बी. ए इज आर 3D 4 4s
2 and B is 3D 5 4S 1. This 3D 4 सिर्फ डी शैल बनानी है, 4 एस नहीं. One, two, three, 4. इलेक्ट्रॉन्स फिल करो. इसमें इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे 1 2 3 4. In other case 1 2 3 4 5. एक्सचेंज एनर्जी से पहले नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल करना है. ध्यान से देखना. दिस वन इलेक्ट्रॉन, जो भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ऑन ए, इट कैन एक्सचेंज इट्स पोजीशन विद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. काउंट करके देख सकते हो. देखो ध्यान से देखो. इट कैन एक्सचेंज इट्स पोजीशन विद सेकंड. जैसे 4 स्टूडेंट है एक क्लास में, ये पॉसिबल है. फर्स्ट सेकंड की पोजीशन पे चला जाए, या फर्स्ट थर्ड पे चला जाए, और फर्स्ट कहां पे चला जाए, फोर्थ पोजीशन पे. 3 वेज पॉसिबल है. सिमिलरली अगर मैं कहूं सेकंड स्टूडेंट है, वो उसके एक्सचेंजिंग वेज कितने पॉसिबल हैं? इट कैन एक्सचेंज इट्स पोजीशन विद थर्ड, और इट कैन एक्सचेंज इट्स पोजीशन विद फोर्थ इलेक्ट्रॉन. इज इट ओके? हेलो. Yes, sir. Yes, yes, sir. ओके. लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो. लास्ट इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज इट्स पोजीशन विद, लास्ट वाले को चेक कर प्लीज. लास्ट इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज इट्स पोजीशन विद ओनली दिस. सो टोटल एक्सचेंजिंग वेज कितने हैं यहां पे? टोटल exchanges possible, how many? 3 plus 2 plus 1 6. इस केस में देखो, फर्स्ट बी केस में फर्स्ट कैन एक्सचेंज इट्स पोजीशन विद सेकंड, विद थर्ड, विद फोर्थ, विद फिफ्थ. Similarly, second electron with third, fourth, fifth. Go on again. Third electron with fourth and fifth. Similarly, last electron can exchange its position with second last with last. Now total exchanges possible 10. 4 So 10. plus 3, yes, plus 2 plus 1. Total exchanges 10. अब बच्चे दोनों केसेस में देखो, जिसमें ज्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल होंगी वही ज्यादा एनर्जी लूज करेगा. ऐसा ही होगा ना कुछ? अगर अपनी Yes, केस ले लो, अगर आप एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हो, एक वो सीन है. सेकंड है फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में अपनी बार बार एक्सचेंजेस कर रहे हो पोजीशन. किस केस में ज्यादा एनर्जी लूज करोगे? ऑब्वियसली इन सेकंड केस. सो मोर इज द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस,
greater is the loss in energy. ठीक है? So अब जो सिस्टम है जो एनर्जी लूज कर रहा है उसकी अपनी एनर्जी क्या हो गई? कम. Less is the energy, more is the stability. So यहाँ पे मैं आपको लाइन दे रहा हूं एक जो लर्न करनी है. इनफैक्ट नीचे लिखो loss in energy leads to stability, or you can say lesser is the energy, more is the stability. ठीक है? अब the total exchange ways possible in 3D 5 are 10 and in 3D 4 are 6. ठीक है? आगे लिखो greater are the number of exchanges, more is the loss in energy, and therefore more is stability. So exchanges ways को आपने इस कॉन्टेक्स्ट में लर्न करना है. जितने ज्यादा एक्सचेंजिंग वेज होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. 2 रीजंस थे, दोबारा देख लो. फर्स्ट रीजन वाज partially filled and completely filled subshells are more stable. Symmetry बोलते थे ये थे. Second is energy or exchange energy. Is it okay? हो जाएंगे दोनों? यस सर. अगर ये ठीक है, ओके, अगर दोनों कर सकते हो फिर एक क्वेश्चन लिखो. होमवर्क क्वेश्चन सिमिलर वेज पे आपने करना है. एक्सप्लेन why iron atomic number is 26. Oh, iron नहीं, iron तो normal था. Iron, not iron, sorry. Copper 29 has exceptional electronic configuration. बेटे एज इट इज कॉमा फुल स्टॉप भी कॉपी कर देना है इसका. जस्ट क्रोमियम की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की लिखनी है और ऑन द सिमिलर लाइंस एक्सप्लेन करना. हो जाएगा? Yes, sir. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. ओके, अप्रोक्सीमेटली 1 पेज ब्लैंक छोड़ लो. एक ही पेज पे लिखा होगा मोस्ट प्रोबेबली. फिर देखो एक और क्वेश्चन करना है. राइट electronic configuration of the following ions
and predict number of unpaired electrons, number of unpaired electrons in each case. ठीक है, अब आपको थोड़ा आइडिया होगा दैट डी पहले क्यों लिखा था। वो एस पोजीशन एस की थी, वो डी क्यों लिखा था पहले। अब रीजन करेंगे। अच्छा सॉल्यूशन, सॉरी पहले क्वेश्चन लिखो, कंप्लीट क्वेश्चन। ए पार्ट Fe2 positive, B is Cl negative, C is S2 negative, D is manganese 2 positive, E is cobalt 3 positive, F is Mg 2 positive, G is zinc 2 positive, E is Fe 3 positive, FgHI। ठीक है, इन्हें करना है। सॉल्यूशन देखो, बीच में से कुछ मैं कर रहा हूं। फर्स्ट सी पार्ट है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। S2 नेगेटिव, ठीक है बच्चे। सबसे पहले ना इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं आपने। इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, कितने होते हैं इसमें सल्फर में? 16 इन दिस केस, 16 प्लस 18, ठीक है 18। बट बेस्ट वे इज राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। पहले S2 की छोड़ दो, सल्फर की लिखो सबसे पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी सल्फर की? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर जिसकी पूछा है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 1s2, 3s2, 3p6। Is it okay? दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। फिर आ जाओ ए पार्ट पे। फर्स्ट राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। शॉर्टकट नहीं मारोगे तो ठीक रहोगे। आयरन की लिखो एज इट इज। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d blank, 4s2, 20 हो गए, 6 का 26। Now electronic configuration of Fe2 positive, electrons, total electrons 24। 24। अब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कहां से करने हैं? दैट्स अ कीवर्ड। रिमूव करने हैं यहां से, फ्रॉम द वैलेंस शेल। दैट इज व्हाई एस लास्ट में लिखा था। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6। या तो 4s लिखो ही ना, अगर लिखना है राइट डाउन 4s0।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो। 1 2 3 4 5 6, ये भी पूछा था ना, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पॉइंट समझ आया? इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से करने हैं? ऑलवेज फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, इसमें से। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सबसे पहले एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, देन यू विल प्रोसीड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। बी पार्ट क्या है, नोट किया था ऊपर? Cl नेगेटिव हो जाएगा, आई थिंक। करो बाकी, एक कर देता हूँ। जी पार्ट है जिंक 2 पॉजिटिव। सबसे पहले राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। जिंक एटॉमिक नंबर इज 30। बेटे जरूरी नहीं आपने कंप्लीट लिखनी है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस। आर्गन 18, 3D ब्लैंक छोड़ो, 4s2 3D10। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी पूछा उसने? Zn2 पॉजिटिव। अर्गुन क्या होएगी? Sir, 3D10 4s0. गुड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3D10 4s0। लिखना लिखो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। 3D10 मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, ड्रॉ करके देख लेना। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो बाकी करो। अगर कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो प्लीज। हाँ जी, हो गया यस सर। डन। किसने बोला जस सर सबसे पहले? सिमरन। सिमरन, अच्छा। Cl नेगेटिव क्यों बोल रहे थे सिमरन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक मिनट। तो 1s2, 2s2, हम्म, 2p6, ठीक है, 3s2, गुड। 3p5। नो,
ये तो क्लोरीन की हुई, Cl नेगेटिव। हाँ, Cl नेगेटिव। हाँ जी, एनीवन एल्स? यस सर। हाँ बोल अर्जुन। सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। गुड, 3p6। ठीक है सिमरन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। यस सर। ओके, somebody has done D part, Mn2 positive। यस सर। हाँ जी बोलो। सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। गुड, 3d5। ठीक है, नोट कर लो बच्चे, 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें। यस सर। ठीक है, पनिमा नेक्स्ट, कोबाल्ट, हैव यू डन दिस? सर नो कर रही हूँ मैं। ओके, पहले हो गया डी पार्ट, इज इट ओके?